Okay, let's assume एक ही डिवाइस से रिकॉर्डिंग से काम हो जाएगा. Okay. Hi everyone, good evening once again. Just in case if I missed it. Okay. So what we'll try to cover is work on a couple more problems so that we understand the logic little bit better when it comes to applying induction and finding electric field, electric potential in case of conductors or a combination of conductors. So this is one thing. And if time permits, after that, we'll try to cover and figure out what happens when you have non-conducting material. And for example, you have a non-conducting sphere. And inside that sphere, you have a spherical shape cavity. So we want to figure out what will be the electric field in that particular region, in that particular volume inside cavity. Okay. So I think this is what we'll cover today. So let's start working on a couple of problems first, and then we'll jump on to next concept or application of whatever you have learned so far. So in next question, we have two concentric uniformly charged spherical shells. So this, you have one shell, this has charge capital Q1, and you have another shell, it has charge capital Q2. Charge is uniformly distributed. Q1 पे बराबर charge लगा है, Q2 भी बराबर charge लगा है, ठीक है. And obviously this radius is R2, the smaller radius is R1, and the total charge that is there on the inner sphere is Q1, and the total charge that is there on outer sphere is Q2. These are two separate spherical shells. Whenever I say spherical shell, I mean very small thickness. Okay? You can basically ignore that thickness. So applying induction will not help. If you want to apply, you can do that, but that is not going to change result. So we need to figure out or derive an expression of electric field. So we need to find electric field. So we need to find electric field as a function of R. Okay, so maybe should write it in a better way. Find electric field as a function of R. ट्राई करो सब लोग फटाफट बताओ रिजल्ट क्या आएगा. मतलब R अगर लेस देन R1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, R अगर R1 R2 के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, R अगर मतलब आपका पॉइंट जो अगर वो R2 से बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंड उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना. ठीक है. फास्ट किड्स. Array result, kids, anyone?
चैट पे रिवोट करो किसी का रिजल्ट अगर आया। Okay, so let's try ना। So जो सॉल्व कर रहे हैं, यू कैन सॉल्व एंड शेयर ऑन व्हाट्सएप। सो you have to consider basically 3 reasons are there, right? एक रीजन क्या होगा आपका, चार्ज Q1 स्फेरिकल हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल चार्ज Q1 वाले के अंदर का एक पॉइंट हो गया, जैसे पॉइंट ए बोल देना इसको, एक पॉइंट हो गया दोनों ही स्फेरिकल शेल के बीच, ये रीजन हो गया एक दूसरा रीजन, और एक तीसरा रीजन हो गया आपका आप कंप्लीटली बाहर जा रहे हैं, ठीक है। एंड किसी भी जनरल पॉइंट जैसे ए बी सी, किसी भी जनरल पॉइंट का जो सेंटर ऑफ बोथ द स्फीयर्स जो सेम है, यहां से जो वेक्टर है, जैसे मैं उसको आर वेक्टर बोल दे रहा हूं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, हमें डायरेक्शन भी बताना है, तो डायरेक्शन बताने हमें इजी पड़ेगा, ठीक है। सो एक बच्चे ने आंसर भेजा है, सेइंग अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा सेकंड सिनेरियो में आप, ओके फाइन, गॉट इट, लुक्स करेक्ट, ओके सीम्स करेक्ट। सो ए के लिए आप क्या लिखोगे कि ए में क्या है, आप अंदर है, तो ऐसे सोचो आपकी आप Q1 सरफेस के भी अंदर है और Q2 चार्ज का जो स्फीयर है उसके भी आप अंदर है, तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर आता वो भी नहीं आएगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता ही नहीं है। क्यों, अगर मान लो ऐसे सोचो कि सिर्फ Q1 स्फेरिकल सरफेस होता तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता, और सिर्फ Q2 होता तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता, तो Q1 की वजह से भी पॉइंट ए पर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको नहीं मिला, Q2 वाले चार्ज की वजह से भी आपको पॉइंट ए पर कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं मिला, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया। किसके लिए हुआ, पॉइंट ए। व्हाट इज पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या है आपका, सेंटर से लेकर फर्स्ट स्मॉल स्फीयर के सरफेस तक, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यू कैन सिंपली राइट आर लेस देन कैपिटल आर, बात बराबर। पॉइंट बी, व्हाट इज पॉइंट बी, पॉइंट बी मतलब एक पॉइंट हो गया जो आपका दोनों स्फीयर के बीच वाले रीजन में, राइट। तो वहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अंदर वाला जो स्फीयर है उसके तो आप बाहर हो गए, तो अंदर वाला स्फीयर जिसके लिए आप बाहर है, तो बाहर के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, के क्यूब आर स्क्वायर होता है, और वेर क्यू इज चार्ज ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखोगे आप के Q1 कौन सा, मतलब अंदर वाला जो चार्ज है हमारे पास, अंदर जो स्फीयर है उसका Q1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी सेंटर से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, वो भी स्मॉल आर है, हर एक जनरल पॉइंट का मिड डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो के Q1 आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो रेट अज्यूम करना है पॉजिटिव चार्जेस है, सो रेडियस से दूर की तरफ जा रहा होगा, राइट, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, ठीक है। सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इट मींस आप आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर मेथड हो गया आपका लिखने का, दिस इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्ट ना। एंड अगर आप बाहर वाले स्फीयर की वजह से पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो एक्चुअली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले की वजह से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पॉइंट बी है बाहर वाले स्फीयर के लिए अंदर ही, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, सो अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको वो नहीं मिलेगा। सो इन शॉर्ट आप वैल्यू लिखेंगे के कैपिटल क्यू ओवर आर स्क्वायर, और एक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए, और ये कहां से कहां तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जब आप क्या है R1 और R2 के बीच में, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्फीयर एंड सेकंड स्फीयर दोनों के बीच में अगर आप कहीं पर है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो पॉइंट सी क्या हो गया, आपके अंदर वाले स्फीयर के लिए भी आप बाहर हैं, और अगर आप पॉइंट सी पे हैं तो बाहर वाले स्फीयर के लिए बाहर, आप दोनों स्फीयर के लिए बाहर हैं, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अज्यूमिंग दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेंटर से दूर जा रहा होगा, रेडियस के डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं उसको। सो आप वैल्यू लिख पाओगे के एंड सेंटर पॉइंट सी का डिस्टेंस जो है सेंटर से लेस से स्मॉल आर है, ठीक है। सो यू विल बी राइटिंग के, सो वी विल बी राइटिंग के कैपिटल Q1 ओवर आर स्क्वायर प्लस के कैपिटल Q2 दूसरे वाला स्फीयर की वजह से, उसमें भी आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर, तो आप इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, के कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर। ये आप कब अप्लाई करेंगे, जब आप R2 के बाहर, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट।
और नोट कर लिया तो चैट पे रिप्लाई करो फास्ट। हो गया डन, सब लोगों ने नोट कर लिया। ओके ग्रेट, ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। सो यू हैव सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। रेडियस आर है और इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। सो ठीक है, सो रेडियस हो गया आपका कैपिटल आर एंड सेंटर जो आपका ओरिजिन है। 3D के बाद 3 डायमेंशन हम लोग बातें कर रहे हैं। सो ओरिजिन का मतलब तुम समझ गया ना, 0,0, इस तरह से जाएगा, ठीक है। एंड सरफेस obviously you will need volume charge density as well. So volume charge density वो आपका लेस से रो है, लेट्स अज्यूम इट टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आपको फिगर आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रॉपर वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और वो भी हमें चाहिए वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। फॉर 3 डिफरेंट केसेस। तो एक केस में क्या आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। सेकेंड केस में जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस कोऑर्डिनेट पे, एंड थर्ड केस में जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। फटाफट ट्राई करो सब लोग, वेक्टर फॉर्म है, फॉर्मूला तो याद ही होगा है ना, केसेस तो याद होंगे ना। बाहर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, अगर आप बाहर है, स्फीयर के बाहर है अगर आपका पॉइंट, तो फिर आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप समझ ही जाओगे, सेंटर से दूर की तरफ जा रहा होगा। एंड अगर आप अंदर है तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है, हाँ, तो इसके लिए हम लोगों ने ड्राइव किया था, और रो के फॉर्म में फॉर्मूला काफी छोटा सा आता है। So please apply it and फटाफट find करो, because based on this concept we will study a next, I mean based on this problem we'll study next question itself.
जिसका भी सॉल्व हो गया व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, और जिसने भी सॉल्व कर लिया है वो मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 KQ/8R, लेट मी चेक क्वेश्चन क्या था, 3D वाला क्वेश्चन। नहीं नहीं, क्यों वो क्यू में क्यों सॉल्व कर रहे हैं ना, इसका तो फॉर्मूला डिफरेंट होता है। एक बच्चे ने सॉल्यूशन भेजा है, लेट मी चेक। तो आपने सॉल्यूशन में लिखा है रो आर ओवर 6ε0 रो आर ओवर कुछ तो लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आया। सेकेंड पार्ट इज ये भी समझ में नहीं आया। सो एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सो दिस विल बी इजी फॉर अस टू मैच। सबसे पहले क्या एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कि क्या सिचुएशन था वहां पर, है ना। तो जब आपके पास एक स्फीयर होता है, वैसे ये ऐसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, तो मतलब चार्ज अंदर भी है बाहर भी, हर जगह चार्ज है। तो अगर बाहर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं विच मीन्स KQ/R²। ठीक है, और अगर आप अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो आपका फॉर्मूला होता है ρR/3ε0 गिवन लाइक जो R है आपका स्मॉल r, वो आप सरफेस के अंदर है तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R विच इज रेडियस ऑफ स्फीयर के अंदर होगा, अदरवाइज आप बाहर होंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला तो केस तुम्हारा करेक्ट है, सेकंड ऑनवर्ड्स आई डोंट नो, सो लेट्स चेक, लेट मी चेक। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास डिजाइन है उसको पहले समझने की कोशिश करो। तो हमारे पास जो डिजाइन है उसमें 3D में हमें ऑब्वियसली देखना है, बट 3D बनाना मुश्किल होगा। सो लेट्स से एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस और जी एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका स्फीयर है वो रेडियस आर का है। इसका मतलब अगर हम लोग जेड एक्सिस की तरफ से देख रहे हैं तो फिर हमें क्या होगा, ऐसा एक सर्कल दिखेगा, सर्टेन रेडियस का एक सर्कल दिखेगा हमें। ठीक है, सो विच मीन्स ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0,0,0 विच इज सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और अगर हम लोग ऐसे एक दो कोऑर्डिनेट में बना दे रहा हूँ ना, तो जैसे ये कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेडियस एक्स एक्सिस के अलोंग रेडियस का लेंथ होगा विच इज बेसिकली R,0,0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। अगर आप इस वाले पॉइंट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट 0 है। वाई एक्सिस में आपको ऊपर जाना पड़ रहा है, राइट। सो एंड कितना ऊपर गया आप, रेडियस के इक्वल ऊपर गया। एंड जेड एक्सिस में नहीं है, बिकॉज वो जो स्क्रीन मतलब वो जो सर्कल बनाया मैंने, वो सर्कल एक्स वाई प्लेन में आपका। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है उसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स है वो कहाँ कहाँ गिवन है। ठीक है, सो लेट मी राइट इट एज ए पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी हो गया, एंड लेट्स से इस पॉइंट को मैं सी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सो पॉइंट ए क्या, R/2, यानी एक्स एक्सिस पे R/2 ही जाना है, आर भी नहीं जाना है। तो इस मींस पॉइंट ए आपका एक्चुअली यहाँ पर है, हाफ डिस्टेंस पे। ठीक है, व्हाट अबाउट पॉइंट बी। पॉइंट बी का अगर आप सेंटर से डिस्टेंस देखोगे, मे भी निकाल लेते हैं क्योंकि R/√2 में समझ में नहीं आएगा, राइट। सो लेट मी फिगर आउट, सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे सेंटर से आप लिखते हो, स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड करते हैं, राइट। सो R/√2 का स्क्वायर प्लस R/√2 का सेंटर 0 0 0 पर है ना, तो आप क्या करोगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, राइट। सो इवेंचुअली क्या होगा आपको, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं वैल्यू r आ रहा है। इट मींस ये जो पॉइंट है R/√2, R/√2, ये एक्चुअली क्या है, एक्स वाई प्लेन। देखो जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट 0 है इसमें, तो एक्स वाई प्लेन में ही कहीं पर होगा।
एंड कहां पर है, बाउंड्री पर है, बिकॉज उसका जो सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है वो कैपिटल आर, इट मींस पॉइंट बी जो है आपका वो यहां पर है। ठीक है, आप परफेक्ट बनाया मैंने, आप ज्योमेट्री से भी ट्राई करके देख सकते हैं। पॉइंट सी जो आपका एक्स एक्सिस पे आर लेना है आपको, वाई एक्सिस पे आर लेना है। तो इसमें अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो आप एक्चुअली बाहर जा चुके हैं इस स्पेस से, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस सेंटर से आएगा, फॉर एग्जांपल इस केस में जो डिस्टेंस आएगा आप लिखोगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सॉरी प्लस 0 स्क्वायर। तो ये आ रहा है कितना आपका r√2 आ रहा है, मतलब आप रेडियस से बड़ा डिस्टेंस आप है, यानी आप बाहर है, स्फीयर के बाहर है, आप एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो एक्स वाई प्लेन में ही है आप, बट आप बाहर है। सो विच मीन्स आपका जो पॉइंट सी है वो प्रॉब्ली यहां पर होगा। ठीक है, ये मैं गेस करके बोल रहा हूँ, सो दिस शुड बी पॉइंट सी। ठीक है, सो इतना हमें समझ में आया कि पॉइंट ए जो हमारा अंदर है, तो अंदर वाले के लिए क्या फॉर्मूला हमारा डिफरेंट है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। फर्स्ट केस में जो आप आंसर लिखेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पहले लिख लेता हूँ। मैग्नीट्यूड आप लिखोगे रो एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से आप पॉइंट तक का, जो भी पॉइंट है आपका, तो पॉइंट ए का जो हमारा डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस में, या फिर आप डिस्टेंस यहाँ पे निकाल के देख भी सकते थे, यहाँ पे डिस्टेंस आपका आता है r/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सो बेसिकली आ जाएगा आपका r/2। तो r/2 डिस्टेंस है, वो तो वैसे भी सेंटर से दिख रहा है कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में आप जा रहे हैं, तो r/2 डिस्टेंस आपको मिलेगा। कि सब मैं समझ गया, हम लोग ट्राई करें, लेट मी सॉल्व इट ना। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगा रो कैपिटल r/2, क्योंकि आप अंदर है तो अंदर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ कम्स की डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखें, तो डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर बनाना है जो उस डायरेक्शन में जा रहा हो जिस डायरेक्शन में आपका पॉइंट ए है। तो अगर आप ध्यान से पॉइंट ए को देखेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट ए पे, अज्यूमिंग सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड की डायरेक्शन जाएगा ना। पॉजिटिव चार्ज के गोले में क्या होता है, सेंटर से निकल के बाहर की तरफ जाता है, तो सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, ए से पास होता हुआ राइट साइड की तरफ जाएगा, विच मींस आप वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे आप आई कैप चिपका सकते हैं। ठीक है, सो ये प्रॉपर आंसर हो गया मेरा फर्स्ट केस के लिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड केस, है ना। सेकंड केस क्या है, आप एग्जैक्टली सरफेस पे, तो अगर आप सरफेस पे हैं या फिर उससे बाहर है आप, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आंसर एक्चुअली लिखना चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्मुला आप यूज कर सकते हैं, अंदर वाला भी और बाहर वाला फॉर्मुला बनाया था हम लोगों ने, यू कैन यूज बोथ द फॉर्मुलास, उसमें कोई भी इशू नहीं है ना। फिलहाल क्या कर आओ, मैं अंदर वाला ही फॉर्मुला यूज कर रहा हूं, अंदर वाला फॉर्मुला ही सरफेस के लिए अप्लाई कर लेते हैं। इफ यू डू दैट, सो यू विल हैव टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एज रो एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, आप तो सरफेस पे, तो सरफेस यानी पॉइंट बी का डिस्टेंस सेंटर से क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल आएगा, सो रो r ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आप लिखो। नाउ कम्स द डायरेक्शन पार्ट, तो आपको ये डायरेक्शन चाहिए ना, जैसे मैं एक वेक्टर बना दे रहा हूँ, ये आपका ओरिजिन है और ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है, तो आपको ये डायरेक्शन, ये वेक्टर चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, फिलहाल तो मैं ओ बी यूनिट वेक्टर लिख दे रहा हूँ, और ओ बी वेक्टर अगर आप देखोगे तो ओ बी वेक्टर को आप क्या लिख पाएंगे, कोऑर्डिनेट्स देख लो, जेड कोऑर्डिनेट तो है नहीं उसमें, पॉइंट बी का जो पोजीशन दिया है उसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप। ठीक है, यहां से अगर आप यूनिट वेक्टर बनाकर निकालते हैं, इसमें से यूनिट वेक्टर निकाल लेना, यूनिट वेक्टर आई होप सबको आता है निकालने के लिए। यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं आप, वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो अगर आप ओबी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करोगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये कर लेना खुद से ना। सो आई थिंक ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड आपका आर, सो आप लिखोगे आई कैप बाय √2 प्लस जे कैप बाय √2। ठीक है, सो ये आपको वैल्यू लिखना है वहां पर, तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप लिखोगे रो r ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आई कैप ओवर √2 माइनस जे कैप ओवर √2। ठीक है, ये एक्चुअली आपका यूनिट वेक्टर हो गया ना। थर्ड केस की अगर आप बात करेंगे, तो थर्ड केस में आप बाहर है, बाहर वाला फॉर्मुला यूज करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे के विच इज चार्ज, सॉरी देन यू मल्टीप्लाई चार्ज, तो चार्ज आपको पूरे गोले का चार्ज चाहिए, तो पूरे गोले का वॉल्यूम ले लो और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो डिस्टेंस विल बी, पॉइंट सी का डिस्टेंस हम लोग निकाला r√2 है, पॉइंट सी आपका सेंटर से, इसका स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आप ध्यान से नोटिस करें, वो डायरेक्शन वही आएगा। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर वही ले लेंगे जो पहले यूज किया हम लोगों ने। पॉइंट बी और पॉइंट सी जो ना वो एक ही लाइन में, ठीक है,
सो ओ से बी और इसी के जस्ट आगे आपको सी मिलेगा। सेम वेक्टर आप यूज कर सकते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए ना। इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट, किसी कुछ गड़बड़